जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सही मायने में विश्व रत्न है, जहां भारत में उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज सहित कई संस्थान चल रहे हैं। उसी तरह बाबा साहब का नाम विश्व में भी चमकता है। मध्य यूरोप के हंगरी स्थित संयोजकाजा गांव में डॉक्टर अम्बेडकर विद्यालय चल रहा है। इस स्कूल में यूरोप के शिक्षा मंत्री डॉक्टर लासजलो पाल्कोविक्स ने भेंट दी, जहां उन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ विशेष बातचीत में गरीब बच्चों को शिक्षा देने की बात कही। भारतीय संविधान के निर्माता और विश्वविख्यात डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का नाम सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों को याद किया जाता है। यूरोप खंड के हंगरी देश के सयावकोजा शहर में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल में बाबा साहब की किताबें, उनकी विभिन्न तस्वीरें लगाई गई है। यहाँ पर बच्चों को बाबा साहब के पाठ पढ़ाए जाते हैं। बाबा साहब का शिक्षा के लिए संघर्ष, जाति विरोधी आंदोलन और भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका, इन सभी बातों को यहाँ के छात्रों को बताया जाता है। बाबा साहब को शूद्र के नाम पर छला गया था। ठीक उसी तरह हंगरी में भी जिप्सिस समुदाय को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ भी शूद्रों की तरह इन पर अत्याचार हुए हैं। बाबा साहब की तरह ही जिप्सिस को भी गुलामी से बाहर निकालने के यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल को एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर लासजलो पाल्कोविक्स ने भेंट दी। I am here in Dr. Ambedkar High School in the village called Sayokaza in Hungary in Central Europe, and behalf of Lord Buddha TV and behalf of all of you, I am so thankful to Dr. Paulvich, a Minister of State responsible for education in Hungary, who gave his precious time with Lord Buddha channel to share some of his thoughts. So, good afternoon, Dr. Paulkovich. Thank you very much for agreeing and granting us to give an interview for our channel to India. It is based in Mumbai and Nagpur in Central Asia, where more than 50 million are sort of watching this channel, and most of them are followers of Dr. Ambedkar and Buddhist. So, would you kindly tell us what inspired you to be a politician, and what's your vision for politics? Well, it's a very difficult question. 2 years ago, I didn't think about to be a politician. So I used to be engineer and professor at Technical University, but I got a task to solve or resolve some issues around the Hungarian tertiary higher education. And then I joined the politics for some limited time. And now I somewhat stayed here and now dealing with the total education system in Hungary. Basically, education, I think that it's one of the most important, even if it's not the most important issue in the life of a society. So access to good quality education, the education itself, it determines our future everywhere in the world. And I saw that all the experience what I collected during my university professorship and also the other industrial life, we can profit out of that. That was the reason I joined to the politics. Wow, so you saw this is a means to support education and for many people in Hungary. Absolutely, not the salary, not the other conditions, not the easiness of this task, but basically to give that support to the education in Hungary. Yes. Yeah. So how do you feel when you come to Dr. Ambedkar School in Sayokaza? Well, the first feeling we have a lot to do, but we are in the right track. Basically, the current education policy in Hungary really targeting on what I just said, good quality education for everybody, and if it is possible, everywhere. And everywhere is very important. In Hungary, we have a little bit different school system like you have in India. The school is not only the place for education, but also it's a place for the community, that it can organize the community. Quality is an important issue, but also the access for everybody. That's quite important. So in Sayokaza, it is a small, it's not a large community. In Hungary, we have a lot of this size of the communities. With the same problems, it's important that the kindergarten or the crèche and the lower classes, they always remain in that village, in that community where they are. What happens afterwards, it's a matter of the quality, but we need to provide that access.
do you think that I would like to know your thoughts and comments if Dr. Ambedkar's policies are helpful for ending exclusion? Well, I have, as I said, I have quite a long time history with India, so, and I go to India since about 10 years. And if I compare what I've seen 10 years ago and what I see today, especially if you talk about people who are highly educated, the former company when I used to work, we are running different facilities, not only for production but also for research, high-level research and development. And this policy seems to work. People, engineers, they want to be educated, they want to have high-quality job, and from my understanding from the discussions, basically the families are taking it very seriously. So to be educated, having a degree, it has a very high rank in an Indian family, and I find it very important. And do you think some of these policies are applicable in situation like this? What sort of government of India, Dr. Ambedkar introduced? Of course, we are talking about two different countries. Yeah, indeed. Hungary with 10 million inhabitants in Central Eastern Europe, which is not really comparable to one of the world's largest, slowly the largest country, with very interesting and very complex society structure. But definitely the ideas behind those are applicable, not one-to-one, because India is differently structured than Hungary or in general Central Europe. That's why I asked about the hard tools like the legal frames and budgets and so on, but also I asked about the soft tools. How can we increase the consciousness of the people that education is important? What can we do in order to reduce the differences between the access for different group of people? But many things are interesting. Whether we can introduce them in that form, as in India is introduced. Of course, we talk about like 70 years difference, but many of the ideas they give thoughts and what we can develop on. I just heard, sir, that Jai Bhim network was registered as a church. As an Indian, I don't know what does that mean, and I heard that church registration is withdrawn. So, would you like to comment something on that? There are different legal requirements. What does it mean to be a church? And well, in this case, I guess some of the conditions were not met afterwards. That was the reason that the church registration is withdrawn. But I think that it is not so important that in what form that idea is registered, whether it's a church or it's sort of other body. I think that the main thing is that what they are doing. And similarly, the school is doing very valuable things. It should be supported by the government, by the local community. And what would be your message to India? What you heard from, like, you visited India quite many times, and you know about Dr. Ambedkar. What will I think that I do not really feel at that level that you send any message to India. But what I get in general comment, the way development what I've seen during the last 10 years, it is very remarkable. And looking at the Indian society, I read some statistics that in about 2025, India will be, let's say, the healthiest country in the world as far as the population structure is concerned. So I think that India did all the right things in order to get there. So congratulations for that. Thank you. Well, a last question. Do you think I go back to a previous question about church registration. Do you think Buddhism can be recognized as one of the religion in Hungary? Buddhism is recognized as a religion in Hungary. Thank you very much, and I wish you all the best for all your positive efforts you are taking to bring an inclusive society, Honorable Minister. And we wish you very good luck for your vision for the policies you sort of design for upliftment of Roma people here. Well, that's our biggest task for the next decade, definitely. And do you see hope and sort of your goal to be achieved in coming years? Well, how do you sort of visualize the future? We have defined a very good roadmap. How do we change this situation? I think that from this point of view, the next 5 years will be decisive. The European community
is on the right track. I should recall in 2011, when Hungary was in the leading position of the European Union, that was the first time that the European Union elaborated the Roma strategy, that initiated by Hungary, and that Roma strategy is being deployed for actions, for projects, and now we see also that Slovakia, where they have also significant Roma population, that they will continue with that Roma strategy. So I think that we have all the tools, the legal framework, or if not, then we are going to change it, and all the what I asked you, the soft tools. So all the projects which supports the community, also the Roma community, in order to get this from the situation out. Yeah. Well, thank you very much for talking to Lord Buddha TV, and I wish you all the best for everything. Thank you very much. Thank you. महाराष्ट्र के थाने जिले में खडवली गांव के लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा की गई दूषित जलापूर्ति से 200 लोग बीमार पड़ गए। लोगों को दूषित पानी पीते ही दस्त और उल्टियां शुरू हो गई। उसके बाद ग्रामवासियों को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कई लोगों का उपचार जारी है। 11, 12, 13 3 दिन से यहाँ पर हमारा सर्वेक्षण मतलब जैसा इंफॉर्मेशन मिला हम यहाँ पर पहुँचे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सर्विलेंस चालू है अपने ग्रामीण भाग में, जो खडौली का पूर्व और पश्चिम एरिया है उस एरिया में सर्वेक्षण चालू है हमारा। तो गृह भेंट चालू है। गृह भेंटी के अंदर जितने भी कुछ ऐसे पेशेंट मिलते हैं उनको ये हॉस्पिटल में लाते हैं और स्वयं भी आते हैं। आने के बाद उनके ऊपर उपचार किया। तो अभी तक 205 पेशेंट हमारे यहाँ हुए हैं और उसमें से 43 पेशेंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से। और जो ओपीडी बेसिस पर जितने पेशेंट ओपीडी बेसिस पर पेशेंट ट्रीट किए, जिनको इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत थी, वो पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे 43 पेशेंट थे। यहाँ के पानी जो है तो नदी है, इसमें से एक कुआं है, कुआं के अंदर कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर टीसीएल डाल के फिर ये पानी छोड़ते थे पीने के लिए। 4 दिन से ये गांव में बीमारी फैली है। सब लोगों को लूज मोशन और वोमिटिंग चालू है। तो हमारे यहाँ पे एक पीएचसी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अस्पताल है, वहाँ पे सब पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। ये पानी जो है यहाँ से पानी जाने के बाद वो पानी पीने के बाद सब लोगों के ये लूज मोशन चालू हुआ है और उसका अभी तक वो कुछ निष्कर्ष नहीं हुआ है। राज्य में बारिश की शुरुआत होते ही किसान बुआई पर लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें मुफ्त में बीज और खाद उपलब्ध कराने और कर्ज मुक्त करने की मांग राज्य के पूर्व मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष अनिल देशमुख ने की और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना ज्या आमच्या प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून ज्या मागण्या होत्या की भारतीय जनता पार्टीचे सध्याचे मुख्यमंत्री आहे, बाकी वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांनी जेव्हा ते विरोधामध्ये होते त्यांनी कर्जमाफी करू अशा पद्धतीचं आश्वासन दिलं होतं। आणि सध्याची शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता अतिशय बिकट अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं पाहिजे। नंबर 1, पेरणीचे दिवस आता आले, त्यामध्ये बी बियाण्याच्या सुद्धा 50% किमती राज्य सरकारचं जे बियाणे भांड आहे त्यांनी वाढवले आहे। त्यामुळे कर्जमाफी केली पाहिजे। बी बियाणं आणि खतं हे मोफत शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे। या प्रामुख्याने या महत्त्वाच्या मागण्यासाठी आम्ही आज आमचं निवेदन माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं आणि त्याचबरोबर कर्जाचं पुनर्गठन लवकरात लवकर झालं पाहिजे। ज्या किमती वाढल्या आहेत बी बियाण्याच्या आणि खताच्या त्या कमी झाल्या पाहिजे। याच्यासाठी आम्ही राज्य शासनाला आमचं निवेदन माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं आहे। सर, जर तुमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर पुढे तुमचं काय कदम आहे? कसं आहे, आम्ही आमच्या याच्यामध्ये सांगितलं की आम्ही आता निवेदन दिलेलं आहे, हा जर मान्य नाही झाले आता पाऊस पडला की पेरणी चालू होईल। त्याच्या पहिले सरकारने निर्णय घ्यायला पाहिजे, त्याच्या पहिले कर्जमाफी जाहीर करायला पाहिजे, त्याच्या पहिले खतं आणि बी बियाणे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। आता कसं खताची आणि बी बियाण्याची आवश्यकता आता आहे, कर्जमाफी झाली, आता लोक शेतकरी कर्ज काढत आहेत। त्याच्यामुळे 3 मागण्या अतिशय महत्त्वाच्या आहे। कर्जमाफी झाली पाहिजे, बी बियाणं आणि खतं हे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मोफत राज्य शासनाने दिले पाहिजे। अकोला जिले के बार्शीटाकली स्थित लुम्बिनी बहुउद्देशीय संस्था के अंतर्गत बिहार के निर्माण के लिए आरक्षित रखी गई जमीन पर बार्शीटाकली के तहसीलदार और थानेदार द्वारा पंचशील ध्वज की अवमानना और अपमान करने का मामला सामने आया है। इस भूमि पर पंचशील ध्वज के साथ संस्था फलक भी लगाया गया था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के निकाला गया। इस घटना से बौद्ध जनता में रोष है और उन्होंने तहसीलदार और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया।
4 तारखेला न कोणाला कळविता न कोणाला नोटीस देता बार्शी टाकडी येथील तहसीलदाराने येऊन काढून टाकला. त्यांच्या निषेधार्थ या ठिकाणी आज आम्ही तहसीलदारावर कारवाई होण्यासाठी दोनदीतून व भारतीय धम्मसेनेच्या वतीने या ठिकाणी 1 दिवसीय धम्म आंदोलन टाकलेलं आहे आणि याचा आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी आहे. बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील अंतर्गत आने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाटिका में 10वीं उत्तीर्ण हुए छात्रों का सम्मान ब्रिगेडियर सुधीर सावंत के हाथों हुआ, जहां उपस्थित नागरिकों ने सुधीर सावंत का सत्कार किया। वही छात्रों को संविधान किताब देकर राष्ट्रीय ग्रंथ के महत्व को बताया। इस दौरान अर्जुन गवई, अनंत वानखेड़े सहित कई गणमान्य मौजूद थे। वकिलाचं काम नाही हे मी हा पुस्तक दाखवतो तुम्हाला, संविधान म्हणतायत याचा फक्त इतकासा भाग जरी तुम्ही वाचला तरी पुरे आहे. बाकी पुढे सगळं आहे की पंतप्रधान कसा बनणार, राष्ट्रपती कसा बनणार, मुख्यमंत्री कसा बनणार ते माहीत नसलं तरी चालेल. आणि म्हणून हे संविधान जे बनवलं संविधान सभेमध्ये, तुम्हाला माहित आहे की संविधानाची सभेची सुरुवात झाली 13 डिसेंबर 1946 ला. पाहिजे की त्यात समता असेल, न्याय असेल आणि बंधुत्व असेल. पंडित नेहरूंनी स्पष्ट केलं होतं, समता असेल, न्याय असेल, बंधुत्व असेल. 4 दिवसांनी म्हणजे 17 डिसेंबर 1946 ला सर्व्हिस सुरू करा, म्हणजे आमची ही मुलं CET करणारी उद्या वकील होतील, यांना सरकारमध्ये वकील म्हणून नोकरी लागेल आणि त्यांनी दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या सर्वांना, गरीब लोकांना फुकट वकील देण्याचं काम सरकारने केलं पाहिजे असाही प्रस्ताव मी सरकारकडे दिला होता. कारण लक्षात ठेवा एकच, स्वतंत्र भारतामध्ये तुम्ही स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याच्या अगोदरची परिस्थिती वेगळी होती, त्या अगोदरच्या घटना वेगळ्या होत्या. ते कुठल्याही ग्रंथात असतील त्या घटना होत्या, मनुस्मृतीतली घटना असेल किंवा इतर घटना असेल, बुद्ध धम्माची सुद्धा घटना होती. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को घरकुल से वंचित रखा गया है। BPL सूची में नाम शामिल करने की मांग को लेकर कारला गांव में लोग धरने पर बैठे हैं। आम्ही ग्रामवासी कारला 1 नंबर वार्डातील सर्वांची यादी गायब असल्यामुळे आम्ही इथं धरणे आंदोलन कलेक्टर साहेबांसमोर जाहीर केलेलं आहे. तेव्हा आमची मागणी त्वरित पूर्ण करावी ही आमची कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे. शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहे पूना शहर में कई ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। उन्हीं में से एक है श्रद्धा पवार, जिसने न सिर्फ 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में अपना नाम दर्ज किया, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर इनके 125वीं जयंती पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में भी पहला स्थान प्राप्त कर इस भीम के बेटी ने पूरे अम्बेडकरी समाज को गौरवान्वित किया है। हमारे प्रतिनिधि ने श्रद्धा से एक मुलाकात की। मैं बहुत खुश हूँ। जितना मैंने सोचा था उतना ही यश मैंने निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का पहला और अंतिम सच है विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इस बात को मैं संक्षिप्त रूप से कहना चाहती हूँ, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। मेरे भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, मेरे भीम ने जुबा खोली तो हर कोई तूफान बन गया, मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और मेरे भीम ने एक कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। और इसी संविधान के कारण मेरे जैसे हज़ारों लड़कियों को ये सम्मान मिल गया है। मैं 3 घंटे रोज़ पढ़ती थी और मेरे स्कूल में 6 टुकड़ियाँ हैं। मेरे स्कूल में ज़्यादातर ब्राह्मण छात्र छात्राएँ आती है, उनमें से मैं जाती हूँ और स्कूल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के कारण प्रवेश मिला है। और उसी स्कूल में बहुत ही लड़कियाँ होशियार जानी जाती है, बहुत ही मशहूर स्कूल में है पुणे में। और उस स्कूल में मैंने 95.40%
यश संपादन किया है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उस स्कूल में संस्कृत में मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, इसलिए और भी बड़ी खुशी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुंबई के उल्लासनगर में पंचशील समाज सेवा मित्र मंडल और यंग स्टार ग्रुप की ओर से तथागत बुद्ध की जयंती पर समता धम्म रैली का आयोजन किया गया। भगवान बुद्ध के शांति और समता के संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं का पठन भी किया गया। सर्वप्रथम त्या महापुरुषांनी आपल्याला तुम्हाला जे दिलेले आहे प्रतिज्ञानुसार तिथे पंचशील आहे। या 22 प्रतिज्ञामध्ये पंचशील आहे। त्या महासंकल्प करूया। बाबासाहेबांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा स्टेज पर्यंत सीमित न ठेवता, भाषणापुरता सीमित न ठेवता मनपूर्वक अति ईमानदारीने मी 22 प्रतिज्ञा पालन करणार या विचाराने हार टाकायचा। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 2560व्या जयंती निमित्ताने आम्ही सर्व उल्हासनगरमध्ये लोकांना शांतीचा संदेश द्यायला धम्म रॅली आयोजित केलेली असून आलेल्या सर्व मान्यवरांचा आभार व्यक्त करतो आणि भविष्यामध्ये आमच्यासारखे अशी रॅली काढावी आणि जगामध्ये बुद्धांचा बाबासाहेबांचा शांतीचा संदेश पोहोचवावा हीच विनंती। आलेल्या सर्व मान्यवरांचा पुन्हा एकदा मनापासून जय भीम, जय महाराष्ट्र, नमो बुद्धाय। तर जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध हे आपले दैवत आम्ही लोक मानत आहोत आणि यांची आम्ही जयंती मोठ्या उत्साहाने धूमधडाक्याने काढलेली आहे। यामध्ये आम्हाला सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे। जितके उपासिका सर्व उपस्थित झालेले होते, त्यामध्ये कुठल्याही पक्षाचा काही संबंध न येऊ देता आम्ही लोकांनी हे केलेलं आहे। विशेष म्हणजे आम्हाला ती रॅली शांतमय म्हणजे फक्त व्हाईट कपड्यांनीच काढायची होती आणि आम्ही त्याच कपड्यांनी काढलेली आहे। त्यामध्ये आपल्यासारखे गरीब लोक आहेत, त्यामुळे आम्ही त्या लोकांना हाऊस हाऊस जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स केले। हाऊस हाऊस ज्यांना साड्या नव्हत्या, कोणी बोललं आम्हाला साड्या नाही व्हाईट, आम्ही त्यांना साड्या वाटप केल्या आहे। कमीत कमी 500-600 साड्या आम्ही वाटप केल्या आहे आणि त्या साड्या वगैरे सर्व घेऊन मेणबत्त्या कॅन्डेल घेऊन आणि एक मोठा गाडीचा आम्ही हे केला, गाडीला मोठी गाडी ट्रक केली। ट्रकमध्ये बाबासाहेबांची मोठी बौद्धाची मोठी मूर्ती घेतली आणि भव्य त्यात देखावा काढला। त्यातल्या आमचे धर्माचे गुरु पण होते, भंतजी पण होते, 4-5 भंतजी होते, त्यांना त्याच्या गाडीवर सजवलं आणि तसंच कॅन्डल घेऊन आम्ही लोकांनी 4 नंबर सुभाष टेकडी, कुर्ला कॅम्प, लाल चक्की, विंडोज टॉकीज, मराठा सेक्शन, स्टेशन इकडनं ती रॅली धम्म रॅली काढली होती आणि त्यामध्ये आम्हाला मोठा सहकार्य मिळालं आहे। रॅली काढायचं होते का आजपर्यंत बौद्ध जयंती फक्त आपण घरामध्ये किंवा विहारामध्ये करतो, परंतु रॅली आजपर्यंत कोणी काढलेली नाही आहे। परंतु सोनकांबळे परिवार आमच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आणि प्रयत्न आम्ही यशस्वी केलेला आहे। आपण फक्त बाबासाहेबांची जयंती जोरात नाचून डमाडोळात काढतो आणि प्रत्येक लोक काढतात, त्या गोष्टीचा आम्हाला अभिमान आहे। परंतु बौद्ध जयंती ही कोणीही सुद्धा काढलेली नाही आणि आम्ही लोकांनी बौद्ध जयंती काढली।
त्याला भरपूर आम्हाला सपोर्ट मिळाला आहे आणि एकदम शांतिमय बुद्धम शरणम गच्छामी दुसरं तिसरं वाक्य त्यात काही सुद्धा उल्लेख नाही. लोकांनी आमचा सत्कार केला. आम्ही ठिकाणी गेलो तर आम्हाला त्यांनी थंड पाण्याची व्यवस्था पिण्याची व्यवस्था केली आणि शरबत वगैरे दिला. आमच्या लोकांचे सत्कार केले जेणेकरून धम्माचे पुजारी किंवा धम्मांना मानणारे लोक आणि इतर लोकांनी सुद्धा आम्हाला मोठा प्रतिसाद केला. तर ह्या माध्यमातून फक्त उपासिका आणि उपासिकेला माझं ही नम्र विनंती आहे का विश्वभरामध्ये बौद्ध जयंती मोठ्या साधाने थाटामाटाने साजरी करावी. हेच तुम्हाला आमच्या सोनकांबळे परिवारातर्फे विनंतीचा आग्रहाचा तुम्हाला एक संदेश देण्यात येत आहे आणि हे सर्वांनी करायला पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बुद्ध. महाराष्ट्र के सातारा जिले में धम्म सेवक के घर पर श्रामणेर संघ के लिए भोजनदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भंतेगण मौजूद थे। धम्म उपासक उपासिकाओं ने भंतेगण के बैंड बाजे के साथ रैली निकाली और उनके निवास आगमन पर फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान सामूहिक वंदना भी ली गई। भगवान बुद्ध ने हमें जो पंचशील आचरण सिखाया, तो ये जो 10 दिन का शिविर रहता है, सही मायने देखा जाए तो ये प्रथमोपचार पेटी है, त्रिपिटक नहीं है। भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक दिया हमको। बौद्ध धर्म का आचरण प्रसारित होने के लिए हम नज़दीक ये श्रमण अवस्था लेके उनको ये पढ़ाते हैं। जो बौद्ध का जो ज्ञान है उसी तरीके से उनसे आचरण करवाया जाता है। जो श्रमण अवस्था भगवान बुद्ध के काल में समय में चल रही थी, जैसी चल रही है वैसी अवस्था इसी समय हम चला रहे हैं। और जो श्रमण अवस्था जो आचरण है, जो भगवान बुद्ध का संदेश है, आचारो परमो धम्मा, इसी तरीके से हम इसका प्रचार और प्रसारण करते हैं। मुझे बहुत छोटेपन से ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का ये छंद था और इसी के वास्ते में बहुत दिन में ये काम करता है। और ये हमारे यहाँ के लोग सभी लोग मेरे पीछे थे। हम बहुत बचपन से एक कार्य हम बड़ी उम्मीद से करते थे और आज ये हम बूढ़े हो आए। मेरा ये संकल्प है कि हमारे ये बच्चे लोग हैं, इनको बुद्ध धम्म मालूम पड़ना, समझना होना पड़ता है। इसीलिए मैंने इनको श्रामणेर संघ में बैठा है और मेरी ये बस्ती से आज 9 श्रामणेर मैंने बना दिए। खूब बड़ा काम करता है। मैं सम्राट पेपर को गए महीने से मैं हर महीने 1000 रुपये महीना पाइल्स, भगंदर, फिशर जैसे बीमारी पर ऑपरेशन से इलाज किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर कुछ समय में पाइल्स जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, जिसकी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर प्रवीण साहबे ने दी और चीन में अपने प्रशिक्षण के दौरान अपने अनुभव बताए। आज हमने जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है आज गरीब और सर्वसाधारण लोग जो अपनी बीमारियों के लिए अगर 10 से 15 दिन बेड पर पड़े रहेंगे तो उनका खाने के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं समझ सकते हैं। इसके लिए हमने मध्य भारत में पहली बार और महाराष्ट्र में पहली बार BEM टेक्नोलॉजी जो है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस का जो टेक्नोलॉजी पाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए हमने लॉन्च किया है। वो पहली बार हमने इसलिए लॉन्च किया कि इसका जो इलाज है वो काफ़ी सस्ता है और इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे पेशेंट के लिए हमने ये सुविधा की है कि पेशेंट खुद चल के आ सकता है और चल के घर जा सकता है। और ये पेशेंट के लिए मुख्य फ़ायदा ये है कि इसके बाद होने वाला जो दर्द है या पेन है, उसमें कोई प्रकार का चीरा नहीं रहता है, तो पेशेंट को ज़्यादा दिन एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिन दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पेशेंट अपने रूटीन वर्क पर नेक्स्ट डे से जा सकता है। इसमें कोई प्रकार का ब्लीडिंग होने की संभावना नहीं है या कोई जीवित हानि होने की या अपने शरीर को हानि पहुंचने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक नया संशोधन है और फर्स्ट टाइम नागपुर में, महाराष्ट्र में और सेंट्रल इंडिया में हमने इसको लॉन्च किया है। और आप OPD बेस पे, जैसे हम लोग दांत का ट्रीटमेंट करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इस पाइल्स की बीमारियों के लिए, गुदबाग में होने वाली बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे कि फिशुला है, फिशर है, पाइल्स है, पाइलोनेडुलर साइनस है, इनके लिए हम लोग ये
यूज़ कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम लोकल OPD बेस में ही ले सकते हैं। आज की जय भीम इंडिया न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन बारिश के पूर्व ही क्यों प्यासी है महाराष्ट्र की उपराजधानी? मनपा की लापरवाही या नियोजन का अभाव देखिए कल रात 9 बजे सिर्फ लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। जय भीम।